ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਖਰ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਣ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 12 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ SSM बनाया गया किसान आगुओं वालों उस पे जी देखिए, जो SSM की इन लोगों ने घोषणा की है उसकी चर्चा तो बहुत पहले हो गई थी कि भाई ये लोग राजनीति में जाएंगे, ये राजनीति करेंगे। जैसे बीजेपी बार बार इल्जाम लगा रही थी कि ये राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है। कोशिश बहुत की थी कि कोई राजनीति करने वाला इस आंदोलन में ना घुस पाए, लेकिन जहां पे सबसे बड़ा धोखा खाया अब की बार जनता ने, वो धोखा ये खाया कि जो आगू थे उन्हीं में से कुछ एक लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग खुद राजनीति में आने के लिए तैयार हो गए। और राजनीति में आए लोगों के मना करते करते सबसे पहले जो गुरनाम चढ़ूनी ने बोला मिशन पंजाब, उनका इतना विरोध हुआ है हरियाणा में कि उनको अब हरियाणा में कोई बुला के खुश नहीं है, ना ही उनको कहीं पर कोई प्रोग्राम करने दिया जाएगा। थोड़े बहुत जो उन्हीं के लोग बचे हैं वो ही प्रोग्राम कर सकते, बाकी हरियाणा की जनता अब उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसके हमने अपनी एक साख बनाई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की जनता की नजर थी भाई आगे एक अपना ऐसा मोर्चा खड़ा हो गया है जो कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ खड़ा होकर अपनी बात रख सकता है, जो लोगों के दिलों के विचार हैं, जो मांगे हैं वो मनवा सकता है। और जोगिंदर सिंह उगराह जी ने कल भी एक बात बोली, कोई जरूरी नहीं होता कि हमें कीचड़ में ही उतरना चाहिए कीचड़ साफ करने के लिए, हम लोगों को जागरूक करके भी उस कीचड़ को साफ कर सकते हैं। उनकी बात उन्होंने बार बार बोलते रहे, मान जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मानना चाह रहा, ना कोई सुनना चाह रहा। अब इन लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि ना ये जनता की आवाज सुनाई दे रही। जो इनका स्वागत हुआ था पंजाब जाने पर, इन लोगों ने सोचा अगर हम राजनीति पार्टी बनाएंगे तो भी जनता हमारा ऐसे ही स्वागत करेगी। ये इस गलतफहमी में होके इन लोगों ने SSM की घोषणा की, घोषणा करते ही उसका रिजल्ट धीरे धीरे लोगों के सामने आना शुरू हो चुका है। अभी भी इनके पास समय है, अगर ये समय रहते बोल देते कि नहीं हम कोई मतलब के हमारे को नहीं लड़ना कोई चुनाव, ना ही हम चुनाव में आना चाहते, जैसे जोगिंदर सिंह उगराह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम कभी चुनाव लड़ेंगे। जनता की उम्मीद थी कि जो SKM के बाकी नेता हैं वो लोग भी ऐसे ही घोषणा करेंगे जैसे जोगिंदर सिंह उगराह, दल्लेवाल जी, दर्शनपाल जी ने किया कि हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे।
लेकिन इन लोगों को पता नहीं, भगवान जाने या वाहे गुरु जी इनके ऊपर मेहर करे, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे कि इनकी बुद्धि कहां पे भ्रष्ट हो चुकी है कि ये लोग राजनीति में आना ही चाहते हैं। बिल्कुल इन्होंने घोषणा कर दी एक तरीके से। अभी पंजाब की जनता बिल्कुल मुखर है। पंजाब की जनता ने अपना जवाब धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है कि हम तब तक इनकी इज्जत कर रहे थे, इनको अपना मान सम्मान दे रहे थे, जब तक ये लोग गरीब और किसान की लड़ाई, बिल्कुल चाहे सड़क पे बैठ के लड़ो, चाहे सरकारों से टकरा के लड़ो, इनको पूरा मान सम्मान दिया गया, इनको जितना मांगा पैसा दिया गया, इनको जो चीज मांगी। आपको पता नहीं होगा वीर जी, एक चीज बताता हूं मैं आपको। जो हरियाणा की जनता थी, जिन्होंने दूध लस्सी और दही पहुंचाया था ना बॉर्डर पे, आज वही लोग बिल्कुल रोने को तैयार हैं। क्या हमने इसीलिए अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के और बॉर्डर पे पहुंचाया था कि ये लोग राजनीति करेंगे? राजनीति करने वालों से तंग होके लोगों ने एक एसकेएम की तरफ मुख किया था कि एसकेएम अभी हमारी समस्याओं को रखेगा आगे। और जोगिंदर सिंह उगराह जी ने पहले ही बता दिया कि अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है, ये तो लड़ाई की शुरुआत थी। भाई 3 काले कानून आए, काले कानूनों को वापस करवा दिया। एक लोगों के अंदर एक उम्मीद, एक जोश आया था कि अभी हम एमएसपी ले सकते हैं और एमएसपी लेने के लिए एसकेएम हमारा मजबूत है। लेकिन उसी एसकेएम को कुछ एक नेताओं ने पता नहीं इनकी वजह से ना, मतलब जो पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बना है ना, वो लोग तो सोचते हैं कि वो भाईचारा टूट जाएगा, राजनीति करने वाले सोचते हैं। लेकिन जाने दो, चाहे पंजाब वाले राजनीति करो या हरियाणा वाले करो, अब इन लोगों को इग्नोर करना जनता ने सीख लिया है। और इसका जो रिजल्ट होगा ना, आप चुनाव में देखना कि लोगों की वो हालत खराब होगी। इतनी तो राजनीतिक पार्टियों की हालत खराब नहीं होती जितनी अ, इनकी होगी। दीपक जी, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ जी ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ठीक है। उन्हीं से आज फिर सवाल किया गया था। एक छोटा सा इंटरव्यू और देख रहा था महाजन का। एक जी। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने बोला है कि ये 3 कानून वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान आ गया कि ये नेता तो बिक चुके हैं, जो आगू थे उनमें से कुछ लोगों को इन लोगों ने खरीद लिया, लेकिन जो जनता है, जनता का विचार वही है। कल जनता ने, आपको पता हो, सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ट्रोल किया था। इनको बहुत कुछ लिखा है इनके लिए। जो ये बोल रहे 3 कानून लेके आएंगे, तो वो ट्रैक्टर भी वही है और वो जनता भी वही है। हो सकता है हमारे कुछ आगू जिनको की पथ भ्रष्ट हो चुके हैं और राजनीति में जाना चाहते हैं, ये नहीं है कि सभी आगू चले गए हैं। जोगिंदर सिंह उगराह जैसे नेता भी हमारे पास हैं, तल्लेवाल हैं, दर्शनपाल जी हैं, हमारे पास ऐसे नेता बचे हुए हैं जो कि अपनी पूरी मतलब मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े हैं और उस लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने तो पहले ही कहा था, अगर ये 40 के 40 भी बिक जाएंगे ना, तो अगले 40 तैयार हैं। अब युवा बिल्कुल हर तरीके से समझ चुका है। युवा इसलिए आगे नहीं आ रहा था कि एक बार इनको भी देख लेते हैं, मौका देके देखा था इनको, उस मौके का ये लोग फायदा नहीं उठा सके। और जो नरेंद्र तोमर ने बयान दिया है कि हम 1 कदम पीछे हटा के 2 कदम आगे रखेंगे, वो तो 1-2 कदम तो दूर गया, अगर उन्होंने आधा कदम भी आगे रखने का सोचा ना, तो ये जनता इंतजार नहीं करेगी चुनाव कब होगा, उससे पहले ही सरकार को रिजल्ट दे दिया जाएगा। और जनता अपना मन बना चुकी है। अभी जब एमएसपी के लिए आएंगे ना लड़ने के लिए, ये 3 कानून लाने की बात कर रहे हैं, ये जिंदगी में कोई कानून नहीं ले पाएंगे। अब की बार इनके साथ वो हाल किया जाएगा इनका। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੀਏ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਕੇਐਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿ सकूगा ਹੁਣ? बिल्कुल देखिए, जो ये लोग, जनता भी इस बात को उठा रही कि एसकेएम दो फाड़ हो गया है, एसकेएम बट चुका है। एसकेएम अपनी जगह पे कायम है। एसकेएम जब तक कायम है, जब तक जोगिंदर सिंह उगराह जैसे नेता एसकेएम के अंदर है ना, तब तक एसकेएम कायम है। और जो 32 जत्थेबंदियां थी, इन 32 जत्थेबंदियों से अलग अकेले रीढ़ की हड्डी, पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे जोगिंदर सिंह उगराह। और भारतीय किसान उगराह एकता जो संगठन है ना, सबसे मजबूत संगठन है हिंदुस्तान का। आप एक बार उस संगठन के बारे में, आपको तो हमारे से ज्यादा पता होगा, लेकिन अब की बार जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान के लोगों ने देखा है कि इतना मजबूत, इतना मतलब कि अनुशासन देखोगे ना आप उनका, एक आला दर्जे का अनुशासन उस संगठन के अंदर। और जोगिंदर सिंह उगराह जी का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है पहले से ही। अब की बार उन्होंने एक चीज और अपनाई है कि अभी हम युवाओं को मौका देंगे। अभी हमारी भी उम्र हो चुकी है संगठन में, और भी बहुत से ऐसे साथी जिनकी उम्र हो गई है।
अब हम युवाओं को मौका देंगे, वो युवा चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, उत्तर प्रदेश से हो, वो सभी को मौका देंगे। और अब की बार युवाओं के पास मौका भी है अपनी बात रखने का, अपनी बातें मनवाने का। लेकिन उससे पहले युवाओं को एक मन बनाना पड़ेगा कि वो कभी राजनीति में ना आए। राजनीति एक बहुत गंदा दलदल है। अगर आप इसमें उतर गए तो आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ऐसी गलती करोगे जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और राजनीति करने वाला चाहे कितना ही पाक साफ और पवित्र हो, वो गलती कहीं ना कहीं करता ही है। अगर आप जनता के मन की बात सुनते हो, आप किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो आप वो लड़ाई, जोगिंदर सिंह उगराह जी एक धरातल के मजबूत नेता हैं। वो ग्राउंड पे रह के लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई को अपनी हर बार, आज तक का उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने जो लड़ाई शुरू की आज तक हारे नहीं है। वो हर लड़ाई को जीत के उतनी ही ज्यादा मजबूती से अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जहां पर उग्रवाद संगठन की 4 महिलाओं को गाड़ी के नीचे से कुचल दिया गया था। वो एक चेतावनी उग्रवाद जी को देने के लिए किया गया था। लेकिन आप देखो, 4 महिलाओं को कुचला था, 40,000 महिलाएं पहुंच गई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर कि हम भी मरने के लिए तैयार हैं। ऐसा संगठन जब तक हमारे देश के अंदर है, तब तक हमारे देश के किसान को, मजदूर को कोई झुका नहीं सकता। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है बीजेपी कि किसान अपने घर चले गए हैं, अब वो दो फाड़ हो गए। कोई दो फाड़ नहीं है। जब तक मजबूत रहेगा ये एसकेएम, जब तक जोगेंद्र सिंह उग्रवाद जी जब तक इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, तब तक एसकेएम को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ जी ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਆਪਸੀ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। आपस में बातचीत भी होती है और खूब बातचीत होती है। उनसे विचार विमर्श किया गया था। अभी वो दोबारा सोचने के लिए, दोबारा सोचेंगे वो इस बारे में। उन्होंने ये बोला हम दोबारा सोचेंगे। हो सकता है जल्दबाजी में उन्होंने कोई ऐसा फैसला कर लिया हो। उन्होंने पहले भी देख लिया, जब चढ़ूनी ने बोला था मिशन पंजाब में वहां पे चुनाव लड़ूंगा, जब पूरे हरियाणा से उनका बहिष्कार हो गया था, तभी इनको समझ जाना चाहिए था। लेकिन चलो, फिर भी इन लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि हम भी एक पार्टी बनाएंगे। क्योंकि कुछ जनता जनता भी हमारी जो है ना, उनके भी मन अलग अलग होते हैं। जनता खुद बोलने लगी थी कि अब किसानों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। हो सकता है जो किसान आगू थे उन्होंने उनकी बात सुन ली हो, लेकिन इनको अब सोचना और समझना पड़ेगा। राजनीति एक बहुत ही गंदा दलदल है। अगर आप इसके अंदर उतरोगे ना, फिर आप किसान और मजदूर की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाओगे। हाँ, आप जो राजनीति करने वाले हो उनको मजबूर कीजिए कि वो जनता की बात सुने। वो जनता के नौकर हैं, ना कि जनता के मालिक हैं। और ये इन लोगों ने एक बार करके दिखा दिया। जो इसके हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, ये करके दिखाया। ये नहीं कहते हमने करके नहीं दिखाया, करके दिखाया है। लेकिन अभी लड़ाई बहुत बड़ी बाकी थी हमारी। ये तो एक छोटी सी जीत थी हमारी, ये दिखाने के लिए, तानाशाह को झुकाने के लिए। अभी तो लड़ाई बहुत बड़ी बाकी है। वाहेगुरु जी से हम भी अरदास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो जिन जिन आगुओं का दिमाग पथ भ्रष्ट हुआ है, वापिस अपनी लाइन पे आ जाए। अगर नहीं आते हैं तो एसकेएम में कोई कमी नहीं है। एसकेएम दोबारा तैयार है। जब तक जोगिंदर सिंह उग्रवाह जी हैं, दल्लेवाल जी हैं, दर्शनपाल जी, ऐसे नेता हमारे पास हैं, एसकेएम की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि इनकी कमी पूरी नहीं होगी। एसकेएम ऐसे ही रहेगा। हाँ, एसकेएम का जो इन्होंने एसएसएम बना दिया या और कुछ बना दिया, ये इनकी खुद की सोच है, निजी सोच है, ना कि पूरे एसकेएम की सोच है। ये उग्रवाह जी ने क्लियर किया, ये एसकेएम की सोच नहीं है, ये कुछ लोगों की निजी सोच है। अगर वो राजनीति में जाना चाहते करने दो, इनको इसी चुनाव में इनको सबक मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोबारा आना चाहेंगे, फिर इनके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं मिलेगा। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? जी नहीं, कमेटी से, कमेटी का तो पहले ही क्लियर कर दिया था। अभी जो 15 तारीख की बातचीत होगी ना, 15 जनवरी की जो बातचीत होनी है, उसमें ये सरकार चाहेगी कमेटी बनाएगी। लेकिन अगर सरकार ने एक बार गलती से भी ये बोल दिया ना कि हम कमेटी बनाएंगे, सरकार को बहुत मौका दे दिया है। उनको कमेटी का भी मौका दे दिया था कि अपनी रिपोर्ट दे दो। 1 महीने से ज्यादा का समय हो जाएगा। 19 तारीख को हम उठ गए थे जब प्रधानमंत्री ने बोला था। 1 महीने का समय इसीलिए दिया गया था इनको कि आप अपनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार करवाइए। या तो वो रिपोर्ट सौंप देंगे कि ये देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर इन्होंने फिर बोला कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी 2011 से बनी हुई है, अब कमेटियों पर, सरकार पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सरकार ये अगर ये सोचते हो कि इनके ऊपर भरोसा कर लेंगे, इनके मंत्री कुछ बयान देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बयान देता है, इनके बयान ही आपस में नहीं मिलते, तो इनके ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है? अब पूरा का पूरा भरोसा जो हमारे साथ मिलकर लड़ खड़ा होगा,
हम उन पे भरोसा करेंगे। अब सरकार चाहे बीजेपी की हो सामने, चाहे कांग्रेस की हो, अगर हमने अपनी मांगे मनवानी है तो मनवानी है। ये विचार जनता ने बिल्कुल पक्का कर लिया है और जनता लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार बस एक आदेश का इंतजार है। आप देखना अब की बार डबल जोश में, और विशेष तौर पर देखने वाली बात आएगी अब की बार युवा आगे आएगा और युवा के हाथ में कमान होगी। यह सबसे बड़ी और देखने वाली बात आएगी अब की बार। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ जी ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ जी ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। जी ਰਣਜੀਤ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਯਾਨੀ कि गल तां स्पष्ट करती कि किसान आगू ये खुद ही लड़नगे। जी बिल्कुल, इनके तो जो अंदेशा था, हमारे को भी ये अंदेशा था। देखो, चाहे कोई सिंगर है, सिंगरों ने जो अब की बार विशेष तौर पे पंजाब के सिंगर बब्बू मान, दलजीत दोसांझ और भी बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने जो योगदान दिया है ना, इस आंदोलन में योगदान दिया है, वो अविस्मरणीय है। और मतलब कि उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। जो इन लोगों ने योगदान दिया, इन लोगों ने राजनीति के बारे में कभी सोचा नहीं सोचा। ये था सच्चे दिल से जो योगदान था। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा इस बारे में कि हम राजनीति में आएंगे। जो दूर थे, दूर से ही वो कर रहे थे, उनका राजनीति आने दो उनको। अभी हर भजन भी आ रहा है, वो भी ज्वाइन करने जा रहे किसी न किसी पार्टी को। आने तो देखो, इन लोगों का काम है ये। राजनीति के गंदे दलदल में ये उतरना चाहते, उतरने दो इनको। लेकिन जो सच्चे दिल से लड़ाई लड़ता है, सच्चे दिल से लड़ाई लड़ी सबसे पहले दलजीत दोसांझ, बब्बू मान। अरे कलाकार बनना है ना आपको, ऐसे कलाकार बनिए जिन्होंने ग्राउंड पे भी लड़ाई लड़ी। और जो सोशल मीडिया का जो पोर्टल होता है, वहां पर अगर किसी ने किसानों के बारे में कुछ गलत बोला, वहां पर भी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और सच्चे मन से लड़ाई लड़ी। ऐसे लोगों को ना दिल से सल्यूट करने का दिल करता है। और इन लोगों ने एक बार भी ये बोला हो तो हम भी राजनीति में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग ग्राउंड के ऊपर आकर देख चुके थे कि अगर हमने सच्चे दिल से लड़ाई लड़नी है तो हमें राजनीति में नहीं आना। वो लड़ाई ग्राउंड के ऊपर रह के लड़ी जाती है, ना कि राजनीति में जाके। आज तक जितने भी राजनीति में लोग आए हैं, जितने भी नेता आए हैं, वो सभी एक ही बात बोल के आए कि मैं किसान का, मजदूर का, जवान का भला कर दूंगा। आज तक भला हुआ है? नहीं हुआ। जब भी किसान को, मजदूर को, जवान को अपने भले की जरूरत पड़ती है, उनको सड़क के ऊपर आना पड़ता है और संसद को बताना पड़ता है कि हम लड़के अपना हक लेंगे। हक लेने के लिए जो सड़क बनी है ना, ये नेताओं के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है सड़क। टैक्स हम देते हैं, हर एक चीज का टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स भी देते हैं। तो रोड हमारे हैं, ना कि नेताओं के। हाँ, हमारे पास एक ताकत सबसे बड़ी है, वो है वोट की ताकत। अगर वो अब की बार नहीं बटी, जनता जागरूक है, ये सबको पता है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका देखने वाला होगा। कुछ लोग ये सोच के आए, अगर यही हाल रहा, अगर सभी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इस तरह, तो पंजाब में कम से कम 25-30 मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो सब पहले ही सेट होता है। अब समझ में आ जाएगा इनको। इनको एक बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। वो ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना ये राजनीति के रहेंगे और ना ही किसान मजदूर के रहेंगे। इनको ये सबक अब की बार ही मिल जाएगा और बहुत बड़ा सबक होगा ये इनके लिए। लेकिन इनको फिर आने नहीं दिया जाएगा। आंदोलन होगा, एमएसपी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश और पूरी दुनिया को पता है एमएसपी हमारा हक है और वो लेके रहेंगे। जी। दीपक जी, बीजेपी ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ये बीजेपी गलतफहमी में रहती है। और बीजेपी है ना, इन चीजों में बड़े एक्टिव रहते हैं, विशेष तौर पे गोदी मीडिया। आपने देखा, गोदी मीडिया बार बार न्यूज दिखाएगी, ये किसान आगू हम पहले बोल रहे थे राजनीति करेंगे, राजनीति करेंगे। वो ये भड़काना चाहते हैं। ऐसी कोई भड़काने वाली चीज हमारे बीच में नहीं आएगी। हम आज भी वही उनका मान सम्मान करते हैं। अगर वो अभी भी इस चीज को छोड़ के आते हैं, मान सम्मान वही है। नहीं आते कोई बात नहीं, हम समय का इंतजार करेंगे। जब उनको ठोकर लगेगी तब उनकी समझ में आएगा कि उनके भाई आज भी वही रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो एक नजरिया है, वो नजरिया बदली हो जाएगा। सबसे बड़ा नजरिया आपकी बार बदली हुआ हरियाणा की जनता का। हरियाणा की जनता ने सोचा था कि चलो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, एक आदमी बैठ गया होगा, राजनीति में आना चाहता है। लेकिन हम बोल रहे थे रुको, इंतजार करो, और भी आएंगे राजनीति में। और वो अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है। हाँ, अभी भी एक दो ऐसा है जो कि अंदरूनी खाते दूसरे टाइप पे चला हुआ है, उसका भी आपको बहुत जल्दी बताएंगे। उस पर भी नजर है जनता की।
ये लोग ये समझ गए थे जनता सब कुछ देख के अनदेखा कर रही। अनदेखा कोई नहीं कर रहा, नजर सभी पे है और बराबर नजर है। आप जैसे भाई हैं जो कि अपने YouTube के ऊपर आप भी चाहो तो दूसरी खबरें, नेताओं की खबरें दिखा के अपने YouTube के चैनल को आप मशहूर कर सकते हो। लेकिन आपने 1 साल हो गया, पिछले 1 साल से आप लगातार किसानों की दिखा रहे हो। आपने अपनी मशहूरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे बहुत से साथी हैं जो कि सच्चे दिल से लगे हुए हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। आप लोग ऐसे ही लगे रहो। एक किसान जितने अगुवा हैं या जितने किसान पुत्र है, उनसे एक अपील जरूर करेंगे, जो अपना लोकरण चैनल पंजाबी है, लोकरण चैनल हिंदी है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। आपको समय समय पर, समय से पहले भी आपको ताजा जानकारी मिलती रहेगी और आपको ताजा जानकारी चाहिए उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और साथियों को पता लगे कि आपको सच्चाई कहां पे पता लग रही है। ये एक अपील आपके बगैर कहे मैं करना चाहूंगा सभी साथियों से। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ। ਦੀਪਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। शुक्रिया, सत श्री अकाल वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।